viewers of NU, new version of you podcast enrichment series. एंड जैसे आपको पता है कि हम लोग हर बार एक ऐसे एस्टीम ट्रेनर को लाते हैं या हीलर को लाते हैं कि जैसे दे आर गुड इन देयर ओन फील्ड, दे आर एक्सपर्ट, दे आर हेल्पिंग सोसाइटी टू अपलिफ्ट देमसेल्फ, देयर पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ हो सकता है, फिजिकल हेल्थ हो सकता है, स्पिरिचुअल हेल्थ हो सकता है, करियर गाइडेंस हो सकता है. सो टुडे वी हैव एस्टीम नेशनल ट्रेनर and chairman of Ayur Study Chamber, Anand, Shri Raju Rathod sir. Welcome sir on the podcast. Thank you sir. And today we are going to discuss on the topic today's career and youth. So as today's topic is new career selection and today's youth in this era. So sir, very first question, very simple question, is today's youth ready to choose best career in today's era? Yeah, thank you Mr. Nikhil for having me here. And yes, this is the most prominent topic that we must discuss with the youth. Yeah, today's youth, you know, they are facing a problem in selecting the right career. क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि चॉइस इतनी बढ़ गई है, तो कई बार ये होता है in the flood of information, you know, they have a overload of information. And in overload information, sometimes they are not able to take a informed decision, and sometimes even they don't have enough information so they can evaluate that information and take a right decision at the right path of the career. अब जब ये करियर की बात सर आती है तो जनरली यू नो आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड और मे बी आफ्टर अ 12th स्टैंडर्ड, these are the two crucial stage depending on the state where they are getting their education. But at that point of time, the first decision is regarding selecting the stream, like whether they are going for a science. So again in a science, whether they opt for a maths group or whether they opt for a biology group. And then if not science, then which option are there in commerce as well as in arts. So that is a major decision, and once they complete their higher secondary education, maybe in a group that is maths, then B group that is in a medical science or in a biology group, and then in a commerce and then arts. So at that point of time again there is a selection in terms of which course they choose, and after completing their graduation in a given stream, finally for the job, what will be the career option available and how to select the best option. So these are the three different stages where, as you said, some confusion may arise, and thank God today there are a lot of avenues and mentors and consultation available, so you know they can always ask their queries and solve their problems. But confusion may be because of two reasons. The one reason is you know they may not access all the possible information, so they may not be very sensitive to that decision. That may be one of the reason of a confusion. And another reason for a confusion is maybe they have so many informations and they are confused because they are not able to choose any one out of the available option. But I think you know with the right approach and with the right perspective, anyone can easily select the right option. As such, there is no guarantee till the end of your life that whether you went for the right selection or not. But today we will discuss some of the important aspects. Okay. So sir, as we know that we are calling all the resource people, expert people on our platform. So today we have called esteemed expert in this field, but what he has done in his field, he will only share with you because it is a long list. So sir, please share your work. Yeah, I was a very average student in the 10th standard. I got around only 60% in 10th standard. Then I opted for commerce stream. So 11th and 12th also I completed in commerce stream. So up to 12th I was in Gujarati medium. And then I opted for a BBA, that is Bachelor of Business Administration. And subsequently I did MBA. And during MBA, one of my teachers suggested me why not to try to become a lecturer. So I appeared in a UGC NET exam also during my MBA. So I cleared that exam in the 3rd semester of my MBA, and then I secured gold medal also in MBA. And then I joined Sardar Patel University as an assistant professor.
And since I was in academic, over a period of time I developed an interest in training and consultancy and consultation also. So I become a national trainer of Junior Chamber International in 2013, and then I was a president also in a Junior Chamber International Vallabh Vidyanagar chapter. And then to learn more about leadership, I joined Lions as an organization also, where I served as a president of Lions Club of Vitthal Udyog Nagar in the year 2019-20, and serving as a district chairman in a vocational training for last 3 years. I got opportunity to start the Indian Society for Training and Development Anand chapter also as a founder chairman, and subsequently I am also looking more opportunity, and then elected as a regional vice president of a western zone of Indian Society for Training and Development. So my career is apart from academic, got lot of opportunities in a training also and in a leadership also, as I was the leader as a president of University Teachers Association also, where I served 6 years to the union also in the university level. So I got lot of opportunity practically also to learn management as well as leadership, because I believe that management is not a subject of discussion and teaching. Management is a subject of practice. So whatever the opportunities I got to practice my knowledge of management and leadership, I opt that opportunity, and I am very happy that I could develop my career. वंडरफुल सर ऑफ योर जर्नी. आपने अभी देख लिया होगा कि सर की जो जर्नी है वो क्रोनोलॉजी जो आप वो समझने की कोशिश करो कि एक के बाद एक चीज़ अगर आप करते जाते हो, डेफिनेटली यू कैन रीच अप टू योर गोल. तो करियर सिलेक्शन इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट. इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर सर्टन थिंग, then definitely you will reach up to the best career option. So sir, what are the criteria, what is the criteria to select best career, and how to you can just say work on our strength and areas of improvement? There are many views, बहुत सारे इसमें theories है, as well as बहुत सारी इसमें बातें हैं कि करियर कैसे सिलेक्ट की जाए, अपनी कारकिर्दी कैसे बनाई जाए. मेरे ख्याल से बड़े तौर पे देखा जाए तो दो चीज़ें एक इसमें होती है. एक होता है इनसाइड आउटसाइड अप्रोच, और एक होता है आउटसाइड इनसाइड अप्रोच. तो इनसाइड आउटसाइड अप्रोच में ऐसा होता है कि आप अपने अंदर झांकिए कि आप में क्या पैशन है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप में ऐसी क्या काबिलियत है जो दूसरों के पास नहीं है, और उसी के बेस पे अपनी कारकिर्दी का चयन कीजिए. तो ये जो व्यू होता है उसको बोलते हैं इनसाइड आउट व्यू, जिसमें हम अपने अंदर झांकते हैं और फिर बाहर अपना करियर बनाने निकलते हैं. और ज़्यादातर जो बच्चे हैं, गलती आजकल के ज़माने में जो एक दूसरे को देख के, या फॉमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के अगर ये बन गया तो मैं कैसे, या ये बन गया तो मैं कैसे रह गया. तो जिसमें आप फिर देखते हो कि IIMs और IIT में कितना पैकेज मिला है कि 24 लाख 30 लाख पर एनम पैकेज मिला, या ये जो एरोनॉटिक्स है उसमें कितना मजा आता है, आसमान में प्लेन उड़ा सकते हैं. तो ये सब बातों से होता ये है कि हम बाहर की दुनिया से आकर्षित होके फिर ये नहीं देखते हैं कि वो काबिलियत या वो इंटरेस्ट उस फील्ड में मुझे है कि नहीं. सिर्फ और सिर्फ बाहर की चकाचौंध से हम प्रेरित होके वो कैरियर सिलेक्ट करते हैं. तो मुझे लगता है कि पहले वाला जो व्यू है इनसाइड आउट, जिसमें हमें देखना चाहिए कि मैं किस परिवार से आ रहा हूँ, मेरी वैल्यू सिस्टम क्या है, और मुझे किन किन चीज़ों में रुचि रही है. तो मेरी जो पर्सनालिटी है उसके साथ कौन से करियर ऑप्शन मैच हो रहे हैं वो मुझे देखना चाहिए. टिपिकली हमारे भारतीय समाज में हम देखें तो, या खासकर मैं जहाँ रहता हूँ गुजरात, वहाँ पे अगर हम देखें तो लोग मानते हैं कि सबसे अच्छी करियर होती है मेडिकल में, जैसे डॉक्टर बनना और अलग अलग, या फार्मासिस्ट बनना, और उसके बाद अपना आता है इंजीनियरिंग में, और डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाए तो लोग फिर कॉमर्स में आते हैं या आर्ट्स में आते हैं. तो एक्चुअली ये जो सालों से इंडिया में ये परंपरा बनी आ रही है, उससे थोड़ा हटके सोचने की ज़रूरत है. तो ये जो इनसाइड आउटसाइड वाला मैं जो कंसेप्ट बोल रहा था, उसमें भी यही बात है कि आप पहले से ये कैटेगरी मत बना के रखिए कि मैं पहले साइंस में ट्राई करूँगा, फिर साइंस में मैं
पहले डॉक्टर बनना चाहूँगा, फिर नहीं बन सका तो इंजीनियर, फिर नहीं बन सका तो सीए, फिर नहीं बन सका तो एमबीए, फिर नहीं बन सका तो मैं आर्ट्स में बीएड कर लूँगा या कुछ भी जो छोटा मोटा इजी है वो मैं कर लूँगा। उस तरीके से हमें वो कन्वेंशनल वे में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने आप को झांकना चाहिए, अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए और कुछ अलग से सोचना पड़ेगा और उसमें थोड़ा हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा। सर बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें से 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि एक तरफ पेरेंटिंग और सोसाइटी प्रेशर भी कहीं ना कहीं होता है करियर सिलेक्शन में। तो जैसे आपने कहा कि फोमो, वैसे ही एक क्या कहते हैं ना कि मेमनी पद्धति होती है कि उसने किया तो मैं भी करता हूँ। मी टू। हाँ, मी टू। तो क्या पेरेंटिंग और एक्सपर्ट सलाह नहीं ली जाती है जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या फिर सोसाइटी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग सच मीनेस इन बैड करियर सिलेक्शन? नहीं, सही बात है सर। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में सर क्या होता है कि हर इंसान अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। तो अब प्रोफेशनल से कोई सलाह लेना एक बात होती है और किसी से भी सलाह लेना या हमें जो आंसर चाहिए वैसा आंसर जहां मिलेगा वहां जाके सलाह लेना वो अलग बात होती है। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपर्ट्स है, जैसे मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूं तो मैं उन लोगों से पूछूंगा जो इस फील्ड में आगे बढ़े हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। या मैं अगर इंजीनियर बनना चाहता हूं तो मैं उसी मुताबिक लोगों से पूछना चाहूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि हर किसी को पूछने लगते हैं और कई बार इन चक्कर में फंस जाते हैं और लोगों के अजम्पशंस बन जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरे एक रिलेटिव्स का लड़का था, तो उसके पापा चाहते थे कि वो किसी एक्स मेडिकल कॉलेज से ही डिग्री हासिल करे। अब उनको ग्रांटीनेट कॉलेज में मिल रहा था, फिर भी वो बोले नहीं हम इस सेल्फ फाइनेंस में ही जाएंगे। तो मैंने कहा आपका इतना दृढ़ आग्रह क्यों है कि आप उसी में जाना चाहते हो? तो बोले हमारे रिलेटिव्स का एक लड़का था, उसने वहां से एमबीबीएस कंप्लीट किया और आज वो लाखों रुपए कमा रहा है। तो अब उस चक्कर में वो ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। अदरवाइज हम देखें तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर सही इंसान से पूछा जाए तो सही में हमारा करियर है वो हम सही तरीके से चुन सकते हैं। तो पहले आप किससे पूछ रहे हैं वो थोड़ा देख लीजिए कि वो आपको एक ऑब्जेक्टिव व्यू दे रहे हैं या वो अपने प्रिजुडाइज या सब्जेक्टिविटी से बोल रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए। यस, जैसे लिमिटेड वर्जन होते हैं सबके। आपके खुद के ड्रीम्स और दूसरों के नहीं हो सकते, तो वैसा खुद का करियर भी दूसरों का नहीं हो सकता है। सो सर हैज सेड वेरी नाइस थिंग कि जो भी एक्सपर्ट है, मतलब सक्सेसफुल है उस फील्ड में, उनसे ही सलाह लेनी चाहिए, ना कि जो ऑप्ट नहीं कर चुके या फील्ड से रिलेटेड नहीं है। इन द सेम केस सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इनसाइड आउट जिसका अप्रोच है, कि जैसे अब सचिन तेंदुलकर जब आए थे तो गावस्कर का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता है या कोई ऐसा पता नहीं आएगा कि नहीं। देन सचिन तेंदुलकर केम and when Sachin Tendulkar created the record, then also there was a question, and then Virat Kohli has broken that record. तो विराट कोहली अगर ऐसा सोचता कि नहीं सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता है, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो इनसाइड आउट पर्सनालिटी ज़्यादा लर्नेड थी, प्लस खुद को पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। दैट्स वाई कॉम्पिटिशन बहुत है, लेकिन बेस्ट कैंडिडेट को हमेशा जगह मिलती है। एंड फॉर दैट वन पॉइंट वी नीड टू डिस्कस that how personality development is important for any best career option. Yes, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको हम व्यक्तित्व विकास कहते हैं, वो भारतीय परंपरा में भी शुरू से ही वो बहुत ही महत्व रखता है। हम अगर पौराणिक कथा महाभारत या रामायण भी ले लें तो भी वहाँ उस चरित्र के व्यक्तित्व की ही बात हम करते हैं। तो व्यक्तित्व विकास तो भारत में शुरू से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और मेरा ये मानना है कि हर जनरेशन का जो युवा होता है उसके अपने खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको उसी से एक जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर निकलता है, वैसे ही हर दौर का अभिमन्यु होता है और उसकी खुद की एक समस्याएं होती है। तो अभी जो दौर चल रहा है उसमें सर आप देख लीजिए कि स्मार्टफोन आ गए हैं एंड देन स्मार्टफोन ओवरकम द ह्यूमन पर्सनालिटी एंड नाउ वी रीच एट दैट स्टेज वेयर we are very seriously asking a question that whether artificial intelligence will replace the human being or not. So in such kind of a situation
if we talk about some of the human skill, which helped us to reach at this stage, like communication, and then your impressive presentation, and the memory power, all such things, AI or a robotic can easily do that. So personality is itself become a very, very challenging nowadays for any human being. Because now as a person, we are not competing with just the other human being in a job market, but we are also competing with a machine and the robots, those who don't make error and mistakes. So now we have to revisit the even concept of a personality. हम जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम जो वेस्टर्न कल्चर है जिसमें हम पर्सनालिटी बोलते हैं बिग फाइव थ्योरी या एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, इन सब पर्सनालिटी की बात हम करते हैं. भारतीय परंपरा में हम तामसिक, राजसिक, ऐसे सात्विक ऐसी पर्सनालिटी की बात करते हैं. तो पर्सनालिटी जो शब्द है कि व्यक्तित्व, उसको हमें एक शुरू से अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जब मशीन्स, एआई, ये सब स्मार्टफोन्स, उसका यूज बढ़ता जाएगा तो किन मानवीय गुणों या किन मानवीय कौशल्यों की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से हमें अपने स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स, स्किल वो हमें देखना पड़ेगा. तो yes, पर्सनालिटी मेरे ख्याल से सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने व्यक्तित्व से कैसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाना है, उस तरीके का व्यक्तित्व हमें देखना पड़ेगा. और अगर सही जगह से सही गाइडेंस हमें मिले और सही तरीके से हम अपने आप को डालें, तो मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों के सभी चैलेंजेस को अपने व्यक्तित्व से आगे बढ़ सकते हैं. एज वंडरफुली सेड बाय सर कि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नॉट ओनली द एक्सटर्नल बिहेवियर दैट यू हैव, इट इज इंटरनल बिहेवियर ऑल्सो. एंड what types of qualities you inculcate yourself, what type of things you imbibe in your life so that you can be presentable, you can be communicatable with the world, because today world is a platform. आप अपने घर से निकलते हो तभी से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल शुरू हो जाता है. तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आपको लोगों तक जाना पड़ेगा. एज अ डेल कार्नेगी ट्रेनर आई एम ऑल्सो डूइंग दैट, एटलीस्ट मीट 4 to 5 people daily, so that we can come to know what type of their psyche is, what type of their modality of communication is. तो कम्युनिकेशन में मैं भी बहुत वर्स्ट था, बट आई ट्राइड ऑन दैट एंड आई हैड होल्ड ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बट सर एक नेगेटिव एंड डार्क साइड भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत बार नेगेटिव सिलेक्शन से या गलत सिलेक्शन से बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल वी आर सीइंग इन IIT स्पेसिफिकली जो कोटा में देखा गया है कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं या स्ट्रेस बढ़ गया है. द पीपल हु आर नॉट कोपिंग अप, दे ऑल्सो आर गोइंग फॉर सर्टन स्ट्रेस. तो ये क्या रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से हुआ है या एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर? तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है. हाँ, हमने ये जो कोटा फैक्ट्री, TYF के जो भी शो आते हैं उसमें भी देखा है, क्योंकि हमारा ये वहाँ पे डायरेक्ट कोई अनुभव तो नहीं रहा है, लेकिन अलग अलग माध्यम से जो भी हमें न्यूज़ मिलते हैं या हम ऐसे शो देखते हैं जो रियलिटी से बहुत नज़दीक है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है. तो ये आपकी बात बहुत सही है. लेकिन भारतीय परंपरा में भी हम देखते हैं कि अगर हमारे जो पिताजी है उसके सपने अगर पूरे नहीं हुए, या तो वो डॉक्टर बनना चाहते या इंजीनियर नहीं बनना चाहते, तो ज़्यादातर केस में हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों पे थोपते हैं, या तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं जो जीवन में नहीं कर सका वो मेरा बेटा करेगा या बेटी करेगी. तो कई बार ये बात भी होती है कि बच्चे की जितनी क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस होते हैं. और कई बार ये एक सोसाइटी में भी जो एक कंपटीशन चलती है कि मेरे पड़ोस में जो रहते हैं उसका बेटा IIT में चला गया, या मेरी मौसी का बेटा IIT में चला गया, तो मेरा बेटा कैसे पीछे रह जाएगा. तो उसके परसेंटेज या कैपेसिटी कम होती है, फिर भी उसको पैसों के जोर पे वहाँ पे भेज देते हैं, और फिर उनको क्या चाहिए जीवन में या उनकी क्या खासियत है ये हम नहीं देखते हैं. तो वैसे तो हमें पता चल ही जाता है उस बच्चे को कि उस माहौल में वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा या उन प्रेशर को झेल पाएगा कि नहीं.
तो वो माँ बाप को भी थोड़ा बहुत पता रहता भी है और बच्चों को भी वो पता रहता है, वो सिग्नल भी देते हैं, वो कम्युनिकेट भी करते हैं कि यहाँ पर ये नहीं एडजस्ट हो रहा है या हो पा रहा है। फिर भी कई बार हम समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, उस डर से हम कहते हैं कि तू कर ले। आजकल ये मोटिवेशन वाला भी थोड़ा ओवरडोज हो गया है। मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन में ऐसा नहीं है कि मतलब आप 50 माल की बिल्डिंग से नीचे कूद जाओ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट लाइक दैट। टॉक्सिक हो गया कुछ yeah, जगह that पे। becomes very toxic and impractical. Practically it is not possible. So that need to be considered. लेकिन अगेन ये जो हमारी बात हुई कि अगर माँ बाप खुद पढ़े लिखे हैं और अगर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं, कॉन्शियसली अगर डिसीजन ले रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को बचपन से जानते हैं, उसको अलग अलग उसने स्किल एरिया में भी रखा है, तो उसको पता है कि उसके बच्चे में क्या खासियत है। तो समाज में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको छोड़ के अपने बच्चे की खुशी कहाँ पे है और अपना बच्चा कहाँ फिट बैठता है वो हमें देखना चाहिए। हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट आता है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सो इफ द राइट पर्सन इज नॉट एट द राइट जॉब, इफ इट रॉन्ग जॉब, देन व्हाट हैपन। तो कई बार हम मोटिवेशन के उसमें भी सुनते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर को बोला जाए कि वो लता मंगेशकर बन के दिखाए और लता मंगेशकर पॉसिबल नहीं है, हम बोले कि वो क्रिकेट खेल के बताए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो माँ बाप को ये बचपन से पता ही होता है, उनके बच्चों के बचपन से, कि उसका बेटा या बेटी कौन से फील्ड में ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को पहचान बना पाएगा। तो मुझे लगता है कि माँ बाप को दूसरों की आंखों में या दूसरों की बातों में अपने बेटा या बेटी का भविष्य ढूंढने से अच्छा है कि वो थोड़ा दोनों बैठ के किसमें वो खुश है, हाँ, बच्चा किसमें खुश है। सो हमने अभी देखा कि कैसे पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अपने एक्सपेक्टेशंस थोपो मत, बच्चे की जो एक स्ट्रेंथ है, उसके जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो ध्यान में रखते हुए एक करियर सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें वो खुश रहे, क्योंकि खुश होना इम्पॉर्टेंट है। आप किस तरह से अपना काम करते हो, उससे क्या आपको मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है नहीं मिलता, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर, according to survey it is found that over 90% of youth जो 14 साल से 22 साल तक है, उनको सिर्फ 7 से 8 ही स्ट्रीम पता है, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग, AI, कंप्यूटिंग, मेडिकल या ज़्यादा ज़्यादा पायलट एंड एरोनॉटिकल। लेकिन इसके बावजूद भी 250 स्ट्रीम्स है अलग अलग, जहाँ वो एक्सपर्ट बन सकते हैं या स्किल बेस्ड ट्रेनिंग उनसे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये किस चीज़ का अभाव है, क्यों हो रहा है कि दे आर नोइंग ओनली लिमिटेड वर्जन ऑफ चॉइसेस? यस, ट्रू। अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की और कॉम्पिटेंसी मैपिंग की सर बात करें तो दो टाइप के डेवलपमेंट आते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, एक होता है वर्टिकल डेवलपमेंट। अब हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट जो मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है, जैसे MBA हो गया, तो MBA इज नॉट एज सच, मैनेजमेंट इज नॉट एज सच अ डिसिप्लिन, इट इज अ गैदरिंग ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एवरीथिंग। तो उस तरीके से हमें देखना चाहिए कि जो बेसिक साइंसेस है, जैसे बायोलॉजी हो गया, मतलब बायोसाइंसिस हो गए, तो बायोसाइंसिस में भी वर्टिकली भी बहुत सारी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री हो गया तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और देर आर फंडामेंटल साइंसेस एज वेल एज देर आर अप्लाइड साइंसेस ऑल्सो, एंड इन अ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेस ऑल्सो द सेम थिंग इज द फंडामेंटल थिंग्स एंड अप्लाइड थिंग्स आर देयर। तो एक होता है कि बेसिक डिसिप्लिन्स कौन सी होती है, उनके अलाइड सेक्टर्स कौन से होते हैं, और अभी ज़माने में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो कैरियर काउंसलिंग में और ये जो ऑप्शन हमारे पास है उसमें हमें यही देखना चाहिए कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ और दुनिया को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ जो मैचिंग आएगा वही हमारा करियर है। तो कई बार आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि मेरी जहाँ पे जरूरत है उस फील्ड के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो ये हमें देखना चाहिए। और हम जब स्किल की बात करते हैं, वोकेशनल स्किल की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि इंडिया में जिसको हम ITI बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट, इतने सारे हैं, हर गांव हर कस्बे में इंस्टीट्यूट है, लेकिन और वहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज है।
अलग अलग प्रकार के ट्रेड है, वोकेशनल ट्रेड है, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज है, लेकिन हम उसको थोड़ा मतलब सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट नहीं है या ये से करते हैं। जैसे पैरामेडिकल हो गया, तो पैरामेडिकल एक डॉक्टर के पीछे या एक सर्जरी होती है तो उसमें एक फौज लगती है पूरी, एक एम्प्लॉइज की टीम ऑफ द डिफरेंट पीपल, राइट। तो वो भी चाहिए। तो उस तरीके से हम देखें तो आज के जमाने में जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, तो कंटेंट क्रिएशन का इतना बड़ा मार्केट है। जैसे आप नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, जो एक वीडियो कैसेट्स को रेंट देने के नाम की कंपनी शुरू हुई थी, और आज they are not in a content creation, they are in a production of a original TV shows also। तो उस तरीके से पूरी दुनिया बदल रही है। उसमें हमें जो भी अवेलेबल ऑप्शन है, और आजकल AI के ज़माने में इंफॉर्मेशन तो हमें मिल ही जाती है कि कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें होती है। भारत में हम एक और बड़ा एक गलती करते हैं जब करियर काउंसलिंग की बात आती है। हम अक्सर छोटे बच्चे को शुरू से पूछते हैं कि तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, लॉयर बनेगा। तो हम डेजिग्नेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रीम पे और स्किल पे कम फोकस करते हैं। हम ये नहीं सवाल पूछते हैं कि तू किस चीज में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो अगर किस चीज में कंट्रीब्यूशन दे सकता है उस हिसाब से हम पूछेंगे, तो फिर उसके हिसाब से हम स्ट्रीम को ढूंढेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जैसे आने वाले समय में सर देयर विल बी अ ग्रेट क्राइसिस ऑफ टीचर्स आल्सो इन दिस कंट्री। जो टीचर को सही में बोला जाए कि ये पैशनेट टीचर एंड द क्वालिफाइड एंड द स्किलफुल टीचर। ट्रेनिंग का भी वैसा है, रिसर्च में भी देखिए सर, बेसिक जो रिसर्च होती है उसमें भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कैरसिटीज एंड क्राइसिस। और यही चीज हम अगर देखें तो लीडरशिप की भी इस देश में बहुत बड़ी क्राइसिस है। तो पॉलिटिक्स भी इतना बड़ा फील्ड है जहाँ पे अभी तक सही सही लोग नहीं आए हैं, तो वहां पे भी बच्चे जा सकते हैं। अर्बनाइजेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, कि सब शहर बढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट या सिटी प्लानिंग। तो अपने शहरों को रहने लायक शहर कैसे बनाएंगे। तो अभी के जो हमारे सिटीज हैं वो आने वाले दिनों में रहने लायक नहीं बनेंगे। तो हमें एक अलग सिरे से सोचना पड़ेगा। एनर्जी के इतने सारे इश्यूज हैं, तो एनर्जी में भी हमें बहुत सारा कुछ एनवायरनमेंट में और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में भी और रिन्यूएबल एनर्जी में भी क्या क्या हो सकता है वो काम करना पड़ेगा। तो ये सब स्ट्रीम है और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी हासिल करनी चाहिए और उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। Very wonderfully said. He has focused on many streams that are to be touched today because a lot of people are ready with the hefty salary, लेकिन वहाँ पे skillful people नहीं है। आज मुझे याद आता है कि US का एक 13 साल का coincidentally he is an Indian, born American but Indian, and today he cracked the one of the interview in Google, and today his package is 60 lakh rupees. So anybody can become skillful provided they should be given proper guidance and they should know what type of quality we have. So moreover sir, एक चीज़ और देखी गई है कि जैसे ये सिलेक्शन करते करते कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो क्रिएट होता ही है। राइट कैंडिडेट को राइट चीज़ें तक पहुंचने के लिए टाइम भी लगता है, लेकिन दोज हु आर लर्नेड, दोज हु आर हैविंग एक्सपर्ट you can just say advice facility or the knowledge, they are reaching up to that, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग पहुंच नहीं पाते। So they are, I think, underprivileged people, they are talented but they are not getting proper guidance। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं सोसाइटी में या कहीं अवेलेबल है तो they can also get benefit। yes आपने जो कहा वो भी सही है, अंडर प्रिविलेज या ये होता है, लेकिन मुझे लगता है देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम आईपीएल में भी देखते हैं कि छोटे छोटे कस्बों से और सिटीज से बच्चे कैसे आगे आते हैं। और अगर आप में आगे बढ़ने की चाह है और आप में सही में जेन्युइनली यू आर स्किलफुल इन अ सर्टेन डोमेन, तो समाज से कोई ना कोई आपको मदद मिल ही जाती है, पिकअप हो जाएगी। हाँ, जैसे हम सुपर 30 आनंद कुमार का केस देख लीजिए, तो ऐसे आनंद कुमार हर गली में बैठे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप में वो डिजायर है आगे आने की, और अगर आपको अगर कुछ बनना है और अगर आप अपना हाथ फैलाएंगे और किसी से मदद मांगेंगे, तो भारत ऐसा देश है या दुनिया अब उस मुकाम पे पहुंच गई है कि आपको मदद कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी।
आपका फोकस और आपका कंसंट्रेशन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बनना है और आपको मदद कहाँ से मिलनी चाहिए। होता यह है कि आजकल डिस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है एंड फेसबुक है, तो टिकटॉक है, तो इन सब चीज़ों में ऐसा होता है कि हर इंसान को एक भ्रम हो गया है कि वो नॉलेजेबल है। हम व्हाट्सएप पे 2-4 मैसेज किसी चीज के बारे में पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हम इस चीज के एक्सपर्ट हो गए। तो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। इसके लिए बैठना पड़ता है, थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है और सही डायरेक्शन में सोचना पड़ता है, सही लोगों से जुड़ना पड़ता है। तो जैसे हम बोलते थे हार्डवर्क का जमाना था, फिर स्मार्ट वर्क का जमाना है, लेकिन अभी थोड़ा नेटवर्क का भी जमाना है। तो अगर सही लोगों से आप जुड़ोगे तो मुझे लगता है आपको सही गाइडेंस मिलेगा और अपने करियर के मुकाम को आप सही जगह पे ले जा सकेंगे। वंडरफुल वंडरफुल। तो अब जैसे एक चीज़ और भी देखी गई कि हम लोगों ने इस चीज़ पे कभी डिस्कस ज़्यादा कहीं देखा नहीं गया, बहुत कम लोग करते हैं, डार्क साइड ऑफ ह्यूमन काइंड। अब जैसे आपने कहा कि हर एक का एक जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, और आज का यूथ कहीं ना कहीं थोड़ा डाइवर्टेड भी है, नॉट ऑल लेकिन मैक्सिमम बिकॉज ऑफ द सोशल एक्सपोजर। तो उनको कहीं ना कहीं हमें ये सोचना है कि उनको अगर आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, खुद के हैबिट्स पे वर्क करना पड़ेगा, खुद के स्किल पे काम करना पड़ेगा। पेशेंस लूज हो चुका है लोगों का, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, चिड़चिड़ बढ़ गई है। तो ये भी एक डार्कर साइड है कि वो प्रॉपर करियर सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो क्या इस क्वालिटीज़ या इस इमोशन या फीलिंग्स पे भी काम करने की ज़रूरत है? नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है। 18वीं सदी में एक मीडिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हो गए जिसका नाम था मैकलुहान, और वो बोलते थे कि एक ऐसा दिन आएगा वेयर मीडियम बिकम मोर पावरफुल देन मैसेज। तो ये जो मीडियम सब हो गए हैं, वो उसमें स्मार्टफोन हो गया, OTT प्लेटफॉर्म हो गया, तो वो मीडिया है वो युवा मानस पे हावी होता जा रहा है। और उसमें जैसे हम अपने भारतीय परंपरा में विवेक बुद्धि बोलते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या जो चीज होती है वो इल्यूजन है ना, और कोई सी चीज जेन्युइनली सही है, वो सोचने की जो क्षमता है वो युवा कहीं ना कहीं ये मीडिया के चक्काचौंध में खो देता है। तो उसमें उस अभी बोलते हैं ना, दो वर्ल्ड है, एक है वर्चुअल वर्ल्ड और एक रियल वर्ल्ड। तो आजकल का युवा जो धन है वो वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा रहता है और रियल वर्ल्ड में कम रहता है। इल्यूजन क्रिएट करता है कि वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि करियर का जब सिलेक्शन आता है, खास तौर पे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या अपनी मास्टर डिग्री के बाद जब हमें जॉब के लिए जाना है, तो थोड़ा अपने को वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के जमीनी तौर पे क्या सच्चाई है वो भी थोड़ा देखना चाहिए। माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि अपने बेटे या बेटी को थोड़ा वर्चुअल वर्ल्ड से निकाल के जो सही की दुनिया है उसके भी दर्शन करवाएं। माँ बाप को भी निकलना चाहिए, और माँ बाप को भी उन चीजों से निकलना चाहिए। तो मुझे लगता है कंफ्यूजन होना तो अच्छी बात है, मतलब व्हेन यू आर कंफ्यूज मींस यू आर इन्वॉल्वड इन दैट डिसीजन मेकिंग। लेकिन जो ब्लाइंडली हम आंखें बंद करके जो दैट इज डेंजरस, भरोसा करके हम जो डिसीजन लेते हैं वो डेंजरस है। कंफ्यूजन होना तो मतलब एक अच्छी निशानी है कि आप उस दिशा में अच्छी तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन के बाद क्लैरिटी इज द सॉल्यूशन ऑफ और डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग एंड द क्वालिटी। तो अगर मुझे लगता है कि आप फंडामेंटली अगर सही तरीके से सोचेंगे, उसमें हमको जैसे मैनेजमेंट में बोलते हैं बैक टू द बेसिक्स। तो जो बेसिक्स है हमारा, मतलब हमारे दादा परदादा जो कह के गए या हमारे जो पुरानिक बुक्स ऑफ नॉलेज में जो रखा है, या अपनी खुद की गट्स फीलिंग और इंट्यूशन से हमें जो सिग्नल मिलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो हम शांति से बैठ के सोचेंगे वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकल के, तो मुझे लगता है कि ये हो सकेगा। सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जितना आप मीडिया पे या मीडियम पे डिपेंड हो जाओगे, उतनी खुद की भी क्षमता कहीं ना कहीं भूल जाओगे। तो एक बात, एक केस स्टडी मुझे याद आ रही है। अब जनरली हम लोग, हमारे बचपन में कैलकुलेशंस, शायद कुछ कैलकुलेशन 10 से 15 कैलकुलेशन हम लोग ओरली कर लेते थे।
आज अगर आप कोई शॉप में जाते हो तो इतना आदत हो गया है कुछ कुछ लोगों को कि अगर वो 7 रुपये प्लस 12 रुपये प्लस 3 रुपये भी है तो भी कैलकुलेटर का यूज़ करता है, इतनी आदत पड़ गई है। तो ये डिपेंडेंसी ऑन apparatus एंड द मीडियम एंड द सोशल अवेलेबिलिटी is also responsible for forgetting our strength. यस तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं या ऐसा कुछ मंत्रा यूथ के लिए कि थोड़ा सा मेडिटेट करके या खुद को सोशली एक्सपोजर से थोड़ा दूर रख के बैक टू द बेसिक्स जो आपने कहा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लिंथ ही नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। सो इसके ऊपर कुछ नहीं, ये आपकी बात बहुत सही है। हाल में ही बिल गेट्स यहाँ इंडिया आए थे। आप एलन मस्क का भी जो उसकी आइडियोलॉजी है वो भी देख लीजिए, या एआई के जितने बड़े एक्सपर्ट्स है उसकी आइडियोलॉजी डेवलप्ड कंट्रीज से देख लीजिए। तो वो एक बात करते हैं यूनिवर्सल पब्लिक इनकम। तो उस यूनिवर्सल पब्लिक इनकम का जो कंसेप्ट है यही है कि जब एआई और मशीन सब दुनिया में आ जाएगा तो इंसान को ये जो रिपीटेटिव जॉब है उसमें अपनी प्रीशियस लाइफ खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो भी रिपीटेटिव काइंड ऑफ जॉब है, जो मोनोटोनस जॉब है, वो जॉब मशीन और एआई करेंगे, और इंसान को जो समय मिलेगा उसमें गवर्नमेंट उसको एक फिक्स्ड इनकम देगी, और उनको पैसों के पीछे भागने से अच्छा है कि वो अपने लिए टाइम निकाले, थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले, कहीं पे घूमने जाए फैमिली के साथ, और क्वालिटी टाइम अपनी कम्युनिटी के साथ और रियल टाइम फ्रेंड्स फैमिली के साथ वो बिताए। तो जो एआई को सही में समझते हैं, और कई लोग जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं उसके दिमाग में ये क्लैरिटी है कि आने वाले दिनों में जब ये एआई आ जाएगा और ज़्यादातर इंसानों का जो हार्डवर्क है अगर वो एआई करेगा तो इंसानों को ज़्यादा समय मिलेगा। तो इसमें जो सर्विस इंडस्ट्री है वो बढ़ने वाली है, वेलनेस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये आने वाले दिनों में बहुत ही आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि इंसान के पास बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम बचने वाला है। और उसमें सोचना पड़ेगा, उसमें सोचने से ज्यादा डेंजरस चीज सब ये है कि अगर किसी इंसान को अगर आपको पागल बनाना है तो उसको अकेला छोड़ दो और कोई मोबाइल या कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, तो वो अकेला अपने आप को नहीं सर्वाइव कर पाएगा। हाँ। तो वो भी एक इंसान को आने वाले दिनों में सीखना पड़ेगा कि अपने आप अपने साथ कैसे हाउ टू बी हैप्पी विद वनसेल्फ। या एंड अभी ये जो मोबाइल फास्टिंग और ये भी सब चला है कि बिना मोबाइल के हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो वो रिहैबिलिटेशन तक ना पहुंचते हुए यहाँ से शुरू करो, यहाँ से वो करें। प्रिवेंटिव हेल्थ का भी कंसेप्ट है, वो धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पैसों के पीछे भागने से अच्छा है हमें हमें जीवन मिला है तो हमारे जीवन का क्या पर्पस है, और जीवन में हम हर पल को कैसे खुशियों से बिता सकते हैं। अभी ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स वाला इंडेक्स भी आया है जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड के कंट्रीज का हैप्पीनेस स्टेटस है वो क्या है। तो मुझे लगता है कि इंसान की सफलता सिर्फ पैसों से ना आंकते हुए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप अपनी जो जिंदगी है वो हंसी खुशी कैसे बिता सके कि नहीं बिता सके। करेक्ट। सो एज वी नो दैट लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो एक फील्ड में होते हैं या कोई एक स्ट्रीम में होते हैं, तो उनको चाहिए उतना सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो समझ लेते हैं कि यहाँ से लाइफ अपनी ख़त्म हो गई है। क्या ऐसे लोगों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह के दूसरे स्ट्रीम में या दूसरे बिजनेस में या दूसरे करियर में जाते आ सकता है, तो कैसे? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कारकिर्दी के किसी भी फेज में ये हो सकता है। जैसे कोई लड़का या लड़की है वो 12th स्टैंडर्ड में फेल हो गया, तो उनको उस वक्त कई बार बार प्रयास करने पे भी वो साइंस में या मैथ्स में पास नहीं हो रहा है, तो उस मुकाम पे उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ेगा। और कई बार ये भी होता है कि आजकल स्टार्टअप का भी बहुत चलन हो गया है और एक फैशन जैसा भी हो गया है। तो मैंने देखा है कई युवा होते हैं, उसके मम्मी पापा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, लेकिन 2-4 महीने में ही फेल हो जाता है एक्सपीरियंस ना होने की वजह से। तो वो पूरा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और कई बार सुसाइड तक भी मामला पहुंच जाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी सीखनी पड़ेगी, युवाओं को भी सीखनी पड़ेगी, और माँ बाप को भी रिजिड ना होके कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया और अगर उसमें फेल हुए तो कोई बात नहीं, फेल इज नॉट अ फाइनल आंसर।
failure is just an one turning point where you get some right insight at a right time, so now you change your direction. तो फेलियर के साथ कैसे डील करना है ये भी कारकिर्दी के हर मुकाम पे हमें वो सोचना पड़ता है. आजकल के बच्चे टॉलरेंस कम हो गया है और छोटे छोटे फेलियर से घबरा जाते हैं या एक्सट्रीम सोचने लगते हैं. तो मुझे लगता है कि हमें सबको मिलके उनको ये भी सिखाना है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड योर लाइफ. तो छोटी छोटी नाकामयाबियों से नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, और अगर सही में अगर फेलियर परसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो हमें बैठ के सोचना भी पड़ेगा कि उनके कारण क्या है. तो वी हैव टू डायग्नोज द सिचुएशन कि ये फेलियर किस वजह से हो रहा है और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है या हमें वो रास्ता ही बदल देना है. तो कई बार रास्ता बदलने से भी कहीं समस्याओं का समाधान हो जाता है. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी चाहिए. वंडरफुली सेड कि आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो और हाईवे पे कहीं डाइवर्जन आता है, तो डाइवर्जन वो परमानेंट नहीं होता है. यू आर कमिंग ऑन अ राइट पाथ ऑफ हाईवे अगेन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर दैट बैड पैच. तो बैड पैच तो लाइफ में आना ही है, एंड दैट इज़ अ प्रूफ दैट यू आर डूइंग समथिंग. तो फेलियर भी एक सर्टिफिकेट है कि आप कुछ नया कर रहे हो या नया रिस्क ले रहे हो या लाइफ में कुछ और आगे बढ़ रहे हो. दैट इज अ वन प्रूफ. सो ऑलवेज बी रेडी एंड फ्लेक्सिबल फॉर ऑप्टिंग फॉर अनदर चांस फॉर द लाइफ एंड मूव अहेड. दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग. सर, इंटरव्यू में एक चीज़ देखी गई है कि सबसे आसान एक क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. लेकिन बहुत से लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और वहीं पे बता नहीं पाते. तो क्या सेल्फ असेसमेंट की कितनी ज़रूरत है? क्या खुद को जानना और कैसे जाने, दैट यू कैन पुट लाइट ऑन. यस, हाँ, सेल्फ असेसमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड द यंगस्टर्स आल्सो नीड टू लर्न अबाउट दैट. अगर हम सेल्फ की बात करें, मतलब अपने खुद के व्यक्तित्व को अगर हमें उसके बारे में सोचना है तो बेसिकली 3 उसमें कंसेप्ट आते हैं जिसमें बोलते हैं सेल्फ इमेज, self esteem and self efficacy. So self image means what is your perception about yourself. So sometimes we see that students are suffering from inferiority complex, or sometimes students may be suffering from superiority complex. So you assess yourself above than what you are, or maybe assessing yourself below than what you are. जो आप खुद है उससे कम आंकते हैं या ज़्यादा आंकते हैं या परफेक्टली जो है उतना ही आंकते हैं. तो ये सेल्फ इमेज हमारे दिमाग में क्या है वो हमें थोड़ा चेक करना चाहिए. फिर सेल्फ एस्टीम मतलब हाउ मच रिस्पेक्ट यू गिव टू योर सेल्फ विथ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. आपकी स्ट्रेंथ को आप कितनी रिस्पेक्ट देते हो और उसके साथ साथ अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करके उसका कितना आप उसको तजब देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ में फिर सेल्फ एफिकेसी मतलब आपकी कैपेसिटी के बारे में आप क्या मानते हो, राइट? योर परसेप्शन रिगार्डिंग योर कैपेबिलिटीज. कई बार कैपेबिलिटी होने के बावजूद जो युवा है वो अपने आप को कम आंकता है और वो अपना मनचाहा जो करियर है वो नहीं बना सकता है. तो अपनी कैपेबिलिटी पे भी भरोसा करना सीखना चाहिए. और हमारे पास एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. तो उसमें स्ट्रेंथ में आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है तो आप देख लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप अच्छा कर रहे हैं. आपको मैथ्स अच्छा लगता है या आपको थियरी सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, आपको लैंग्वेजेस अच्छे लगते हैं. पहला एक जमाना था जिसमें हम IQ को ही महत्व देते थे और हम समझते थे IQ मतलब मैथमेटिकल स्किल, राइट, एंड कैलकुलेशन स्किल. Then the world talk about a multiple intelligence where your knowledge of a music and musicality, म्यूजिक की आपको बहुत अच्छी समझ है, आपको पेंटिंग की बहुत अच्छी समझ है, आपको कलर्स की बहुत अच्छी समझ है, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत अच्छी समझ है, आपको अलग अलग भाषाओं की समझ है. तो देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय बर्थ यू हैव. तो दुनिया मैथ्स से शुरू और मैथ्स से खत्म नहीं होती है. मैथ्स से अलावा भी एक दुनिया है. तो वो कौन सी स्ट्रेंथ आप में है वो देख लीजिए. कई बार हम वीकनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, उस चक्कर में हमारी स्ट्रेंथ हम खो देते हैं, ओवरशैडो हो जाती है या तो स्ट्रेंथ का हम फायदा नहीं ले पाते. तो वीकनेस, ऑफ कोर्स हमें वीकनेस के बारे में मालूम रहना चाहिए, लेकिन वीकनेस के बारे में ही लगातार सोचना नहीं चाहिए ताकि वीकनेस हम पे हावी हो जाए और हम अपने स्ट्रेंथ के बारे में भूल जाए. और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो भी हमें देख लेना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जमाना का किस और जा रहा है
और मेरी जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक कौन से नए फील्ड है वो डेवलप हो रहे हैं, और चैलेंजेस क्या है। अब चैलेंजेस पे दो टाइप के चैलेंजेस, एक होता है पर्सनल चैलेंजेस कि मेरे फैमिली की जो इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन मेरे फैमिली की क्या है, मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ उसकी क्या सिचुएशन है, उसके क्या चैलेंजेस है। तो मुझे अपने थोड़े फैमिली का भी देखना चाहिए, और फैमिली के साथ साथ बाहर के क्या चैलेंजेस है वो भी मुझे देखना चाहिए। तो जिस एरिया में मैं अपना कारकिर्दी बनाना चाहता हूँ उस एरिया में मेरे व्यक्तिगत तौर पे मेरे क्या क्या चैलेंजेस है, और मैं जब बाहर निकलूंगा तो उस दुनिया में भी क्या क्या चैलेंजेस है उसका थोड़ा बहुत मुझे अभ्यास कर लेना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं जाके दुनिया को अगर फेस करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से दुनिया को फेस कर सकूंगा। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट का मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंस है। सी कैसे एक इंसान का जन्म होने के बाद वो एक गिफ्टेड पर्सनालिटी होता है, तो आसपास के लोग जो होते हैं, मतलब सबसे पहले अपनी फैमिली, देन रिलेटिव्स, देन द फ्रेंड्स, टीचर्स एंड ऑल दैट, दे विल कम टू नो आवर एबिलिटीज़। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है खुद का असेसमेंट करना। जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो खुद का असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में और अच्छा कर सकते हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो वंडरफुली सेड ऑन द सेल्फ असेसमेंट। एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। कहीं ना कहीं सोसाइटी या पेरेंट्स स्ट्रीम से रिलेटेड कंपेयर करने लगते हैं कि साइंस में अगर बच्चा है तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये लड़का सिर्फ बिजनेस करता है तो ये सिर्फ कॉमर्स कर सकता है, या आर्ट्स वाले ये दोनों में नहीं जाते करके आर्ट्स वाले उसमें आते हैं। हालांकि हर स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा म्यूज़िक, ऑथर या फिर साइकोलॉजी, these people need to go for humanities and all that, psychology and all that, they are also equally important in the society। तो ये सोसाइटी में चीज़ ऐसे मीथ क्यों है कि साइंस में गए तो ही इंटेलिजेंट है, बाकी सब स्ट्रीम में गए तो इंटेलिजेंट नहीं है। कई बार हम अच्छी कारकिर्दी किसको बोलते हैं, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। हाँ। तो अच्छी कारकिर्दी को हम इनकम के साथ जोड़ देते हैं, या हमें जो नजर आता है उसी के साथ हम जोड़ देते हैं। एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिलता है और एक डॉक्टर बहुत अच्छा कमाता है, ये सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो दिन रात की मेहनत है वो किसी को नहीं दिखती है। तो कई बार जैसे बोलते हैं दिखता है वही बिकता है। जो हमें दिखता है कि इसमें ज्यादा पैसा है तो वो हम उस स्ट्रीम को ज्यादा सक्सेसफुल मान लेते हैं। लेकिन आपने जैसे बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे आर्ट्स के बाद भी ऐसे बहुत सारे फील्ड है। आप ये कोल्ड प्ले ही देख लीजिए कि लाखों रुपए एक बैंड बनाने वाली जो ग्रुप है वो कमा रही है, तो उसका कोई साइंस का अभ्यास नहीं है। आप बॉलीवुड या देख लीजिए या क्रिकेट का वर्ल्ड देख लीजिए, उसमें सचिन तेंदुलकर कोई नहीं पूछता है कि उसने मैथ्स में कितने मार्क्स थे, वो 10th भी पास है कि नहीं, 10th भी पास है कि नहीं। या बॉलीवुड के जो कलाकार है विकी कौशल से कोई नहीं पूछता है, हालांकि वो तो साइंस स्ट्रीम में पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको कोई नहीं पूछता। इवन रणबीर कपूर, he is only 12th appeared, so education doesn't matter when you are successful। yes। लेकिन ये एक अलग पार्ट है, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट लोग ऐसा समझते हैं कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट because of their aspect, because of their aspects of imagination and all that। नहीं, एजुकेशन की भी हमारी जो व्याख्या है वो हमें बदलनी चाहिए। एजुकेशन, हम एजुकेटेड इंसान किसको बोलेंगे? तो हम बोलते हैं कि मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड तो यही है कि जिसको पढ़ना लिखना आता है ना, या कैलकुलेशन बेसिक आता है, उसको पढ़ा लिखा इंसान बोलेंगे। लेकिन आने वाली सदी में जिस प्रकार से चीजें बदल रही है उसमें मैंने कहीं बहुत अच्छा सुना था कि आज की तारीख में एजुकेटेड इंसान उसको बोलते हैं जो अपने छोटे फैमिली को खाना खिला सके और उसका गुजरान चल सके, उतना कमा सके, और आजू बाजू के लोगों को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उतना कमा सके, और रात को उसको शांति से अच्छी नींद आ जाए, उस इंसान को एजुकेटेड इंसान बोलेंगे। तो हम किस डेफिनेशन से कारकिर्दी और एजुकेशन से चीज़ों को देखेंगे, उस हिसाब से मुझे लगता है हम सही चयन करेंगे। अदरवाइज हम अगर लोग क्या करेंगे और लोग क्या सोचेंगे और लोग कहाँ जा रहे हैं उसी चीज़ से अगर हम सोचेंगे तो पुरानी जो गलती हम करते आए हैं वही गलती हम बार बार दोहराएंगे, और एट द एंड ऑफ अ डे वी विल नॉट बी हैप्पी। सेल्फ satisfaction is very very important. So at the last, sir, any mantras for silver lining of this podcast?
कि एक मंत्रास कोई देना चाहोगे आप यूथ को? मैंने एक अभी बहुत अच्छी बात सुनी थी, वही मैं बोलना चाहूँगा कि कभी कभी हम अपने आप को तूफानों के बीच पाते हैं और कभी कभी तूफानों के बीच हम अपने आप को पाते हैं। तो समटाइम्स इन द मिड्स ऑफ नोवेयर आई फाइंड माई सेल्फ एंड समटाइम्स आई फाइंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ नोवेयर। तो कभी कभी अपने आप को खोजने के लिए खोना भी पड़ता है। तो जब तक आप अपने आप को तूफानों के बीच नहीं ले जाएंगे, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, जब तक आप नया सोचने का जुनून नहीं रखते हो, तब तक मुझे लगता है कि आप वहीं जो पुरानी चीज़ें हैं वो दोहराते जाएंगे एंड यू विल नॉट बिकम रिलेवेंट इन द सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नई चीज़ें करनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी रही या हमने जो से सोचा था वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिला, तो उसी मोड़ बदलने की तैयारी भी हमें रखनी चाहिए। तो अगर हम जिंदगी के साथ साथ जिंदगी कैसे हमें अलग अलग मोड़ पे ले जाती है, उस मोड़ पे अगर थोड़ा सा हम अपना खुद का जो सोच है वो सोच के चलेंगे, तो तूफान और शांति दोनों के बीच अपने जीवन को सुरक्षित पाएंगे। एंड वी कैन क्रिएट अवर ओन इम्प्रेशन। यस डेफिनेटली। सो आपने देखा कि एनयू पॉडकास्ट जो एनरिचमेंट पॉडकास्ट सीरीज है, वहाँ पे हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं, और जैसे हमारा टैगलाइन है जियो नई जिंदगी, न्यू वर्जन ऑफ यू। तो आज सर ने बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी बातों पे एनलाइटन किया, हमें नर्चर किया है बहुत सारे चीज़ों में। तो एक ही लाइन समझ में आती है कि लाइफ इज़ वेरी सिंपल टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ज़रा सिंपल रहने दो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करो अपने स्किल के ऊपर। तो करियर सिलेक्शन तो एक टाइम पे आपको करना ही पड़ेगा, तब तक क्यों ना हम लोग कुछ अच्छा करें लाइफ में, स्किल के ऊपर काम करें, लैंग्वेज के ऊपर काम करें, तो अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी एंड वी विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज पॉडकास्ट सीरीज एपिसोड ऑफ career selection and life design. Thank you sir for coming and enlightening this issue, and we'll welcome you in again next episode again sometime.